Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll just wait for 1 minute or so. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Peter. Good afternoon, sir. Good afternoon. ठीक है, तो अभी तक हमने जो है मीडियन कर लिया है, सॉरी मीन किया है और ग्रुप डेटा, और एज वेल एज हमने मोड भी कर लिया ग्रुप डेटा के लिए, राइट? So the only central tendency that we are left to do for group data is median. Okay. So इसके बाद एक section और है cumulative frequency के graphs that is not there in the course this time. तो बस this is actually the last part of this chapter. और हम क्या करेंगे इसके बाद we will do some questions. Okay, in the next 2-3 classes, then this chapter will be over. And I hope that all other chapter will also get over around that time, right? So आपका one pass of the course पूरा हो जाएगा, and then we will start with revision exercises so that we can complete revision at least 2 times. That will set you well for the examination. Okay. Nakara swag, super tea. Okay, तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. Most of the videos are not on. Okay, and once it is done, we will get started. Mayank, Mukul, Shweta, Vishal, and Jagruti, Anchal, very good. Jagrati is still not on. Jagrati, yeah. Jagrati Goyal, Mayank Garg. यस सर. हाँ, अभी ऑन है मयंक. तो नहीं, अभी भी नहीं ऑन है मयंक का. मयंक, what happened? Abhay Bhati, Mayank, your video is still not on. Shweta Bhati, Shweta, your video is not on. Mayank, what happened? Why is your video not on? Himanshu. Okay. Okay, Mayank, you are the only one left now. I don't know why you are not switching on your camera today. But I do that so that we can proceed. Okay, wonderful. So let's start, okay? So now we will do median, okay? So what type of questions lead to median? Okay, so who is the average student in maths in class 10th? Okay, so the difference in median versus mean that we have to look for is that we are saying average student, not average marks. Okay, so this is the difference between average student
versus average marks. ओके सो यहाँ पे एवरेज मार्क्स में हम क्या निकालते हैं? जब एवरेज मार्क्स कोई बोलेगा तो ये मीन हो जाएगा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट बोल दिया तो ये मीडियन हो जाएगा। ओके तो अगर हम एवरेज ऑफ एक्सआई को एवरेज कर रहे हैं, राइट, जो भी हमारा डेटा है, और वो किस चीज का डेटा है, अगर उसको एवरेज बोलते हैं तो मीडियन होता है। ओके सो व्हाट डज एन एवरेज टैक्सी ड्राइवर अर्न इन इंडिया? Okay, so it is average taxi driver. We are not saying what a taxi driver earn on an average. Okay, then it would be a mean, but this is a median question. What is the size of an average house in Noida? नोएडा में एक जो एवरेज हाउस है उसका साइज क्या होता है? तो अगेन इट इज अ मीडियन क्वेश्चन. So we will start with the ungrouped raw data. Okay. तो ungrouped raw data में हम मीडियन किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले जो हमारा डेटा है, रॉ डेटा, उसको हम सॉर्ट करें. ओके यूजुअली सॉर्ट हम किस ऑर्डर में करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी कि स्मॉलर ऊपर होते हैं नंबर्स और these are larger numbers as we go along. ठीक है, फिर लेकिन अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट करते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, तो भी मीन निकालने का तरीका सेम, मीडियन निकालने का तरीका सेम ही रहेगा, बट दिस इज द यूजुअल. ओके अब जो है हम इसका मिडिल मोस्ट टर्म निकालना चाहते हैं इस डेटा का. मिडिल मोस्ट टर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर n टर्म्स हैं तो बीच का टर्म, राइट, और वो बीच का टर्म किससे आता है? राइट, ऑब्वियसली एक जो दिमाग में बात आती है वो n/2 आती है, राइट, लेकिन अगर हम करके देखें तो वो n/2 नहीं होगा बीच का नंबर, वो होगा n+1/2. ओके इफ n इज ऑड. ठीक है, तो मान लीजिए जैसे n जो है वो 5 है, हमारे पास ये सिंपल 4 5 ये नंबर्स हैं. ठीक है, तो n इज 5 1 2 3 4 5, राइट. अब हमें ये निकालना है, ये है मिडिल मोस्ट, इसके दो इधर हैं दो इधर हैं, तो वी हैव टू डू 5 + 1/2. ओके सो when they are odd, this is our formula to find the term. Okay, ये इस sorted order में जो term है उसका number है, right? n+1/2 is not the median. Okay, this mistake should not be made. So for example, if my data is this 1 3 7 15 20, right? Now this is sorted data. What is the median of this data? Now there are 5 terms, so 5 + 1/2th term, yani third term. So the median is 7. ओके सो ये चीज की गलती नहीं करनी है आपको, ये कई बार मिस्टेक हो जाती है कि n+1/2 को मीडियन लिखा है, ये वाली टर्म जो है वो मीडियन है. अब द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी हैव इवन नंबर ऑफ आइटम्स. जैसे कि मान लीजिए जो मेरी लिस्ट है वो ये है, सो ये कितने हैं? केवल 4 हैं, तो इवन है. अगर मैं n+1/2 करूंगा तो what I will get is 2.5, but there is no 2.5th term, right?
इंटीग्रल नंबर आना चाहिए, तो वो मेरे पास मीडियन नहीं आएगा इस तरह से। व्हाट डू आई डू, आई हैव अ वर्क अराउंड। ओके, ये हमने एक वर्क अराउंड निकाला है इसमें कि हम ये जो बीच की दो टर्म्स हैं इनका एवरेज ले लेते हैं। ओके, और ये कौन सी टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं n/2th टर्म and n/2 plus 1 टर्म। ओके, ये दोनों टर्म्स निकाल के इनका एवरेज ले लेते हैं, उसको फिर हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर का जो लिस्ट होता है जिसमें इवन नंबर ऑफ टोटल आइटम्स होते हैं उसमें ट्रू मीडियन एग्जिस्ट नहीं करता है, हम एक वर्क अराउंड लगा के मीडियन निकालते हैं। ठीक है ना। Okay. अब मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि डेटा अभी भी अनग्रुप्ड ही है, हमने ग्रुपिंग नहीं की डेटा की, लेकिन उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में डाल दिया है। तो जो हमारा एग्जाम्पल चलता आ रहा है क्लास के शुरू से, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है फ्रॉम 1 to 20 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट इट, राइट। So number of students is nothing but the frequency and marks obtained are exercise, right? तो अब इसमें हम मीडियन कैसे निकालेंगे? Who will give me the answer? Who can give this answer? इस डेटा में मीडियन हम किस तरह से निकालेंगे? अभी ग्रुप्स नहीं बनाए हैं मैंने। Who will attempt to answer this? Jagrati, can you answer this? सर हम इसे ऐसे बना सकते हैं ना कि 1 to 5 मार्क्स जिसके भी ऑब्टेन हुए तो इतने स्टूडेंट्स हो गए। हाँ, हमें 5 देखिए, हमें मीडियन मतलब बीच की टर्म निकालनी है, अभी ग्रुपिंग नहीं करनी है हमें। मैं ग्रुपिंग करने को नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिना ग्रुपिंग करे इसमें मीडियन निकालना है। रॉ डेटा का ही मीडियन है, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसीज बना दी हैं ऑलरेडी, तब ये मैं कैसे निकालूं? सर पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग में लिखे, ये ऑलरेडी असेंडिंग। सर हम एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो काउंट कर लेंगे, पूरी फ्रीक्वेंसी जो आएगी सर वो काउंट करेंगे। 72 है। इवन का दूसरा फॉर्मूला होता है। हाँ, और वो 72 है, मैंने काउंट किया हुआ है, बता दिया आपको 72 है। ठीक है, तो इवन के लिए हाँ, n+1/2 वाला फॉर्मूला। तो 30 इस n ये है, तो 72/2 क्या हो गया? 36, और 36th टर्म एंड 37th टर्म लेंगे, राइट? ओके, राइट। तो अब यहाँ पे एक अगर इस तरह का क्वेश्चन है, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है? पहली चीज जो मिस्टेक कॉमन होती है वो ये होती है, ये देखते ही कई बार लोगों को दिखाई देता है, वो काउंट कर लेते हैं 1 to 20, तो वो 20 को नंबर लेकर कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द रियल नंबर। These are just the number of unique एक्साइज, ये यूनिक का नंबर है, लेकिन रियल लिस्ट इज 72 आइटम्स लॉन्ग। अब हमने, अगर वो बिल्कुल सही बोला जागृति कि ये जो है 36th और 37th आइटम हमें लेना है, ना कि 10th और 11th आइटम। ठीक है, वेरी गुड। नाउ हम 36th और 37th आइटम कैसे लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने तो इस तरह लिस्ट बनाई हुई है।
इसको करने के अब दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो यह है कि हम इस लिस्ट को एक्सपेंड कर दें, राइट? जैसे कि 1 लिखा पहले, ओके, फिर क्योंकि 1 एक ही बार है तो एक बार लिख दिया। अब जो 2 है वो 2 बार है तो 2 को 2 बार लिखा, ठीक है। फिर 3 एक बार है। फिर 4 जो है 2 बार है तो 4 को 2 बार लिखा। फिर 5 जो है 2 बार है, 5 को 2 बार लिखा, ठीक है। सर बट हम्म, सर इस वे में तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। हाँ, वेरी गुड। ये बहुत, लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको करते जाइए, एक लंबी 72 आइटम्स की लिस्ट बनेगी, ठीक है। और आप चाहें तो 72 तक ना भी जाएं, क्योंकि हमें तो 37 तक ही जाना है। फॉर्मूला भी तो होता है हाँ, नंबर निकालने का हाँ, होता है। होता है, मेथड होता है, मैं आ रहा हूँ उसमें, डेफिनेटली होता है, राइट। तो ये अगर हम इस तरह करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन आंसर आएगा, राइट। तो हम इस तरह इसको नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो फिर भी 72 आइटम्स है। व्हाट इफ वी हैड 1000 आइटम्स और 1 मिलियन आइटम्स? इतनी लंबी लिस्ट थोड़ी ना हम बनाएंगे। फिर ये वाली जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, इसका फायदा ही क्या हुआ, राइट। तो हम इस तरह लिस्ट एक्सपेंड करे बिना ये करेंगे। किस तरह करेंगे? हम एक और कॉलम ऐड करेंगे अपने फ्रीक्वेंसी टेबल में, ओके, जिसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़कर जो निकाली गई है चीज, क्यूमुलेट करके जो निकाली गई है, इकट्ठी करके जो चीज निकाली गई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? पहली वाला नंबर तो सेम आएगा एज इट इज। सेकंड में हम जो यहाँ नंबर है उसमें ये जो नई फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ देंगे। तो 1 + 2 is equal to 3. Now next time what will we do? We have 1 now, so we will add it to the previous one, which is 3. We will get a 4. Okay, now 4 is there already. Now we know the new frequency is 2. We add 2 to this 4, we get a 6. ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पूरी टेबल बनाते जाएंगे और लास्ट एंट्री जो हमारी आएगी वो क्या होगा? समेशन ऑफ FIs होगा, क्योंकि एक एक करके हमने सभी जोड़ दिए। तो एक्चुअली हमने सभी कुछ जोड़ा है, तो लास्ट एंट्री जो है वो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज के इक्वल होगी, राइट। सो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं तो हमें टोटल नंबर भी मिल जाएगा उससे। अंडरस्टूड? अब हमें इसकी मदद से 36 और 37 आइटम को ढूंढना है, ओके। तो कैसे ढूंढेंगे? जो 36 आइटम है वो कहाँ होगा? वो वहां होगा जिस नंबर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल हुई है या फिर जस्ट एक्सीड हुई है, राइट। क्योंकि देखिए यहां तक कितने नंबर कवर हो गए, इस नंबर तक कितने नंबर कवर हो गए? 29, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि यहां तक 29 आइटम्स कवर हो चुके और यहां तक 37 आइटम्स कवर हो गए। एंड इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो वो आइटम नहीं है, यानी 9 इज नॉट आर 26th आइटम, बट 10 इज आर 26th आइटम, 36th item, sorry. So 10 is a 36th item, right? Also, luckily for us, 10th is also the 37th item, because 37 भी यही है। इसका मतलब 10 जो है वो 36th आइटम भी है और 37th आइटम भी है।
तो इन दोनों का एवरेज मतलब 10-10 का ही एवरेज ले रहे हो आप, तो 10 ही आएगा, राइट। सो जो हमारा मीडियन है वो है 10 मार्क्स। ओके, नाउ एनी डाउट्स एनीबडी हैज? इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट यूज किया है। डेटा अभी भी ग्रुप्ड नहीं है, केवल फ्रीक्वेंसी टेबल है हमारे पास। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Anybody who has doubts can speak up, then I will move to the grouped part. Okay, so I'll go on to the grouped part. Give me 1 second. I think there is some problem in this tool. Give me 1 minute, okay? ओके सर, ओके। What has happened? सर जी भूल से बढ़ाओ। एक सेकेंड बेटा, वो ना जो मेरे स्लाइड्स हैं वो लोड नहीं हो रहे। अरे याद ना रहो। नहीं नहीं, वो मेरे स्लाइड्स जो है वो निकल गए हैं। मैं 1 सेकेंड। अरे विशाल मजा ले रहा सर की गेम। कोई बात नहीं बेटा। मैं बताऊं? बताओ बेटा। तुम्हें बढ़ा दो मोदी। Okay. So now we will do with the group data. Okay. So when we group the data, then we cannot, like in case of mode, we cannot find the median directly. Okay. But what we can find is the median class. Okay. मीडियन क्लास क्या चीज है? मीडियन क्लास वो चीज है जिस क्लास में मीडियन होगा। ओके, द क्लास दैट कंटेन्स द मीडियन। ओके, अब हम क्या करते हैं, जब डेटा ग्रुप्ड होता है, then we do not anymore differentiate between odd number and even number.
ओके क्योंकि अब हम एक्यूरेटली वो नंबर एनीवे पिन पॉइंट नहीं कर सकते. ओके सो टू मेक लाइफ सिंपलर, what is the rule? We do not differentiate between odd and even numbers. Okay, what do? We just take the total number, okay, of items and divide it by 2. Okay, and then the term and the class which will contain the n by 2th term, okay, will be our median class. सर जी स्कूल ना खुले. बेटा क्लास के बाद बात करते हैं उसके बारे में. वैसे भी वो मुझे नहीं पता है, आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा स्कूल में. ओके विशाल, नंबर ना है. क्लास. विशाल, डोंट इंटरप्ट द क्लास. ओके Yes, सर को ma'am. कंटिन्यू करने दीजिए. अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप रीड कर सकते हैं क्लास. मैं फर्स्ट आ रहा हूँ वो तो. यस सर, कंटिन्यू प्लीज. thank you ma'am. Okay so we only look for the n by 2th term. Okay, we leave the distinction between the even and odd numbers. Okay, now how do we find which is the median class? Okay, we will use the same concept, which is to build a cumulative frequency table, and then we will find the median class. Okay, so this is our data which we have been using till now, which is the data of 72 items. Okay, so since the data is 72 items, 72 by 2 is the 36th number. We are looking for the 36th number. Okay, so let's look at which will contain the 36th number. So we are looking for one class where the frequency just exceeds which number? 36. Okay, so this is the one where it exceeds. 8 was smaller. This is the first time it exceeds. So this is our median class. Okay, this is our median class. Okay, now we have to find what is the median within the median class. Okay, so how will we find the median within the median class? Okay, to do this we will again use the interpolation of the type linear interpolation. Okay, and the formula for that is, okay, note the formula, it is L. Okay, L is again the same number, the lower limit of the median class. Okay, plus n by 2 minus cumulative frequency of the previous class. This is the cumulative frequency of the previous class. Okay, what was the cumulative frequency of the previous class? This. So this is our number CF. Okay, and the lower limit here is 6. This is our L. Okay, divided by the frequency of the median class. Okay, so this is the frequency of the median class. So 29 is my F. Okay, into the width of the class intervals, right? We are assuming equal class intervals, so it is the same everywhere, which is 5. Okay, 6 minus 1 is 5, 11 minus 6 is also 5, so it's anyway same everywhere, so it's the class width. Okay, so let's put those values and see what do we get. So 6 plus 36 is n by 2 minus 8. Okay, 8 is the cumulative frequency of the previous class, right? Divided by
the frequency of the median class, which is 29, into the width, right? This comes out to be 10.82. Okay, so this is the median of the group data. Okay, again the same question we will validate. Is it same as the ungrouped data or not? Okay, is it same as the ungrouped data or is it not? What was the median for the ungrouped data? Anybody remembers? We did it about 10 minutes back. Sir, 10. 10 आया था, राइट? लेकिन जब हमने ग्रुप डेटा का, सेम डेटा है लेकिन ग्रुप करके निकाला तो 10.82 आया, राइट? Why? Because grouping करने में some information is lost. Okay, and now we have this estimated value of the mean, right? हमारे जो कोर्स में है वो ग्रुप डेटा ही आएगा, राइट? आपके एग्जाम में अनग्रुप नहीं आएगा, लेकिन आपको अनग्रुप आए बिना आप ग्रुप कर नहीं सकते. ओके, सो ये हमारा ग्रुप डेटा का मीडियन आ गया, ठीक है? इट इज नॉट अ ट्रू मीडियन, इट्स एन एस्टिमेटेड मीडियन. ठीक है? Anybody who has not understood the formula, okay? Logic of the formula is linear interpolation. Okay, that I need not explain again. मैंने वो मोड में समझाया था, right? लेकिन ये फॉर्मूले में कोई चीज समझ नहीं आई है तो ask me. Anything which is not clear in the formula? Okay, good. Now, can somebody also tell me one thing कि ये हमारा n by 2 was 36. Just assume that n by 2 was 37. तो हमारी मीडियन क्लास क्या होती? अगर n by 2 37 रहा होता तो इसी डेटा में हमारी मीडियन क्लास क्या होती? सर सेम होती. ओके, हाँ देखिए सर क्योंकि 37 तक है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यस, यू आर राइट, लेकिन वो your what you're saying, your argument is actually not wrong, but you're missing something. Okay, the thing you are missing is, हाँ जागृति बोलो. सर आपने बोला ना क्या मिस कर रहे हैं. हाँ, देखो, you are very correct that 37 is included here, right? But the problem that happens is 11 is not included. यस सर. ओके, तो इस वजह से हमारा जो रूल है, हमारा रूल ये है कि हम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे विच एक्सीड्स एंड इज द नियरेस्ट. ओके, तो जो लैंग्वेज आप बुक में भी पढ़ेंगे वो होगी वेयर इट एक्सीड्स एंड इज द नियरेस्ट. सो 37 जो है वो 37 को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो हमें जो है इस पे आना पड़ेगा. हमारी मीडियन क्लास 11 is to 16 बन जाएगी. ठीक है, मीडियन में ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखने की, क्योंकि जो अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है इस केस में, because of the way we define the inclusivity and exclusivity in a class. Okay,
another thing to note in this is that the type of cumulative frequency distribution we are building, right? हम किस तरह का बना रहे हैं कि सबसे पहले 8, राइट? और हमने डेटा क्या था, हमारा असेंडिंग डेटा था। अगर असेंडिंग डेटा होता है और हम फ्रीक्वेंसी ऊपर से ऐसे बनाना शुरू करते हैं, तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि 37 जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स किससे कम है, 11 से कम है। उसी तरह से 64 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 16 से कम हैं, राइट? और 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 6 से कम मार्क्स। तो हम लेस देन द अपर लिमिट करके बोलते हैं, तो इसको लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कहा जाता है। ओके और अगर हम डिसेंडिंग में बनाएंगे तो उसको कहेंगे मोर देन इक्वल टू टाइप, लेकिन इक्वल टू वर्ड में ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन याद रखने के लिए मोर देन इक्वल टू याद रखिए, लेकिन नाम उसका मोर देन टाइप ही होता है। ओके सो दिस इज समथिंग दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। ओके let me just quickly mark the attendance. Today had been a pretty low strength for the class, okay, which is a concern. Okay, is there some other activity going on? Why is the attendance yesterday also it was slightly lower and today it's very low? Okay, so I think and you know, tell your friends also that they should join the class. Now a final thing that we should know about, okay, is the empirical relationship between the median, the mode and the mean. ओके सो ये जो फॉर्मूला है ये हमें पता होना चाहिए, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ओके तो अगर हमें किसी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 वैल्यूज दी गई, ओके हमें मान लीजिए मोड दिया गया है एक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है 5, ओके और मीन दिया गया है वो है 4, और पूछा गया है व्हाट इज मीडियन। डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया तो हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ओके लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, केवल ये 2 डेटा दिया और मीडियन पूछा गया है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट दिस बी इक्वल टू m, सो 3m इज इक्वल टू मोड इज 5 प्लस 2 इंटू 4, okay, is equal to 13. So median is equal to 13 by 3, which is 4. Okay, so हम जो है इस तरह से मीडियन को empirically निकाल सकते हैं। This may not be same as what we find by proper calculations. Okay, so until and unless the distribution is not available to us, हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, बस क्वेश्चन में इतना ही डेटा दिया और मीडियन पूछा है, तब आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, ये केवल एम्पिरिकली डिराइव्ड है। स्टैटिस्टिशियंस ने बहुत सारा डेटा चेक करके उनको लगा कि इस तरह से एक रफ आंसर आ सकता है। तो दिस रिलेशनशिप इज टू बी रिमेंबर्ड। Okay, now we are coming to the end of the class today. From tomorrow we will do questions in this class.